السلام علیکم، ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں فہد شہزادہ اور میں ہوں ساتھیہ۔ آغاز میں ہی آپ کو بتائیں، کوٹردو کے قریب مظفر گڑھ کینال میں باراتیوں سے بھرا لوڈر رکشہ گرنے کا افسوسناک واقعہ۔ ریسکیو آپریشن جاری، اب تک 7 افراد کی لاشیں برآمد جبکہ 9 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ ریسکیو حکام کے مطابق لواحقین نے بتایا کہ لوڈر رکشہ میں 24 افراد سوار تھے، جن میں سے 9 افراد کو مقامی افراد اور ریسکیو اہلکاروں نے بحفاظت نکال لیا، جبکہ اب تک 6 افراد کی لاشیں برآمد ہو چکی ہیں۔ ریسکیو کے مطابق تقریباً 9 افراد تاحال لاپتہ ہے، جن کی تلاش کے لیے کوٹردو اور مظفر گڑھ کی ریسکیو ٹیمیں مشترکہ سرچ آپریشن کر رہی ہیں۔ حکام کے مطابق کینال میں پانی کی گہرائی 12 سے 15 فٹ اور بہاؤ 3000 سے 5000 کیوسک ہے، جس کے باعث سرچ آپریشن میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تاہم لاپتہ افراد کی تلاش تک واٹر سرچ آپریشن جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دیپالپور کے نواحی علاقہ واسو سالم میں دریائے ستلج میں بھینس سے گزارتے ہوئے 12 سالہ بچہ ڈوب گیا۔ ریسکیو کے مطابق اطلاع ملتے ہی ٹیموں کو سرچ آپریشن کے لیے جائے حادثہ کی جانب روانہ کر دیا گیا، تاہم مقامی افراد نے ریسکیو ٹیموں کے پہنچنے سے پہلے ہی بچے کو دریا سے نکال لیا تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے بچے کو بچانے کے لیے CPR کیا، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکا۔ مامو کانچن کے قریب موٹر سائیکل اور ٹرالی میں خوفناک تصادم، نوجوان جاں بحق جبکہ خاتون شدید زخمی ہو گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس تھانہ مامو کانچن موقع پر پہنچ گئی اور زخمی خاتون کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کیا، جبکہ جاں بحق نوجوان کی نعش بھی اسپتال منتقل کر دی گئی۔ پولیس کے مطابق جاں بحق نوجوان کی شناخت پنو کے نام سے ہوئی ہے۔ حادثے کی مزید وجوہات اور واقعے سے متعلق قانونی کارروائی جاری ہے۔ گڑھ مہاراجہ میں بجلی کی ٹوٹی تار سمیٹتے ہوئے نوجوان کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو گیا۔ شدید کرنٹ لگنے سے محمد جمیل موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیم موقع پر پہنچی، تاہم ریسکیو اہلکاروں کے پہنچنے سے قبل ہی نوجوان دم توڑ چکا تھا۔ ریسکیو حکام نے ضروری کارروائی کے بعد لاش لواحقین کے حوالے کر دی۔ منڈی عثمان والا کے نواحی گاؤں باغ علی میں موٹر سائیکل کے ہارن سے خوفزدہ بیل گاڑی گہرے کنویں میں جا گری۔ ریسکیو نے 2 گھنٹے کی کارروائی کے بعد بیل اور سوار کو بحفاظت نکال لیا۔ اطلاع ملتے ہی ریسکیو کی ٹیمیں موقع پر پہنچی اور مقامی افراد کی مدد سے امدادی کارروائی شروع کی۔ ریسکیو اہلکاروں نے بھاری رسیوں اور جدید آلات کی مدد سے تقریباً 2 گھنٹے کی مسلسل محنت کے بعد بیل گاڑی اور ایک شخص کو بحفاظت کنویں سے باہر نکال لیا۔ ہری پور ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں زیر تعمیر فیکٹری کا پلر گرنے سے ایک مزدور جاں بحق، 4 افراد زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق عبدالخالق نامی شخص مزدوروں کے ہمراہ پلر کی تعمیر میں مصروف تھا کہ اچانک گر گیا، جس کے نتیجے میں ایک شخص جاں بحق اور 4 افراد زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں اور جاں بحق شخص سمیت زخمیوں کو طبی امداد کے لیے ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ اوباڑوں میں جیل پولیس کی تحویل سے فرار ہونے والے ڈاکوں کے خلاف آپریشن راہب شر اور موریو شر کے ٹھکانوں پر ڈرون حملہ، متعدد ٹھکانے تباہ کر دیے گئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دونوں ڈاکو 1 کروڑ روپے انعام یافتہ راہب شر اور موریو شر اوباڑوں کی عدالت میں پیشی کے دوران فرار ہوئے تھے۔ ڈیوٹی میں مبینہ غفلت برتنے پر جیل پولیس کے 12 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جبکہ فرار ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے مزید آپریشن جاری ہے۔ ادھر رحیم یار خان سیب نالہ روڈ پر تھانہ منٹھار پولیس نے ناکہ بندی کے دوران مشکوک موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو مسلح ڈاکو نے پولیس پر فائرنگ کر دی۔ پولیس کی جوابی کارروائی میں فائرنگ کے تبادلے کے دوران 2 نامعلوم ڈاکو ہلاک ہو گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق ہلاک ڈاکوں کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ اور ڈکیتی شدہ موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی گئی۔ پولیس نے فرار ہونے والے ساتھی ڈاکوں کی گرفتاری کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کر دیا ہے۔ اور ناظرین، ڈھلیانہ پولیس کی مبینہ ڈاکوں کے خلاف کارروائی، فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک مبینہ ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا، جس کے نتیجے میں ملزم زخمی ہو گیا۔ زخمی ملزم کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کر کے مزید قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ہے۔
دوسری جانب عارف والا میں چوک مرلی پیٹرولنگ پولیس کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی، دوران چیکنگ 2 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پیٹرولنگ پولیس کے مطابق ناکے پر گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران مشکوک افراد کو روک کر تلاشی لی گئی تو ان کے قبضہ سے اسلحہ برآمد ہوا۔ پولیس نے دونوں ملزمان کو حراست میں لے کر برآمد ہونے والا اسلحہ قبضے میں لے لیا ہے۔ گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ خانے وال کے لاہور موڑ پر وین میں مبینہ طور پر غیر قانونی LPG ریفلنگ کے دوران سلنڈر پھٹنے سے اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پوری وین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وین جل کر خاکستر ہو گئی۔ خوش قسمتی سے حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ واقعے کے بعد شہریوں نے پبلک ٹرانسپورٹ میں LPG سلنڈرز کے غیر قانونی استعمال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دادو کے قریب سرکاری اسکول کی زمین پر موجہ قبضے کی خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ کا فوری ایکشن، اسسٹنٹ کمشنر نے کارروائی کر کے اسکول کی زمین واگزار کرا لی۔ دادو کے قریب گاؤں جموں خان چوان میں سرکاری اسکول کی زمین پر موجہ قبضے کے حوالے سے خبر نشر ہونے کے بعد انتظامیہ نے فوری نوٹس لیا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر سمیع اللہ نے موقع پر پہنچ کر صورتحال کا جائزہ لیا اور کارروائی کرتے ہوئے سرکاری اسکول کی زمین سے موجہ غیر قانونی قبضہ ختم کرا دیا ہے۔ انتظامیہ کی کارروائی کے بعد اسکول کی زمین قبضے سے واگزار کرا لی گئی، جس پر علاقہ مکینوں اور تعلیمی حلقوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ٹنڈوالہ جار میں مرغی کے کچرے سے تجار ہونے والے مبینہ غیر قانونی آئل کی فروخت کے خلاف کارروائی، ڈپٹی کمشنر نے آئل سے بھرے ڈرم اور گاڑی تحویل میں لے کر قانونی کارروائی شروع کر دی۔ کارروائی کے دوران گاڑی سے آئل سے بھرے 4 سے 6 ڈرم برآمد ہوئے، جنہیں تحویل میں لے لیا گیا۔ حکام کے مطابق مرغی کے کچرے سے تیار کیا جانے والا آئل فوری طور پر تلف کر دیا گیا، جبکہ گاڑی کے ڈرائیور کو حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا گیا۔ شہریوں نے کارروائی پر ڈپٹی کمشنر کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ بورے والا میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، متعدد افراد کنڈوں اور ڈائریکٹ سپلائی کے ذریعے بجلی چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ کارروائی کے دوران چک نمبر 35 کے بی بستی وزیر وسطی افتخار شاہ اور ساہوگا کے علاقوں میں متعدد افراد کو کنڈے ڈال کر اور میٹروں سے ڈائریکٹ سپلائی حاصل کر کے بجلی استعمال کرتے ہوئے پکڑ لیا گیا ہے۔ وابدہ حکام نے بجلی چوروں کے خلاف تھانہ ساہوگا میں مقدمات کے اندراج کے لیے درخواستیں بھی جمع کرا دی ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری سے ملتان پریس کلب کے صدر شکیل انجم کی ملاقات، صحافی کالونی سمیت صحافیوں کے مسائل کے حل پر بھی گفتگو کی گئی۔ ملاقات کے دوران ملتان کے صحافیوں کو درپیش مسائل بالخصوص صحافی کالونی سے متعلق امور پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے سیکرٹری ہاؤسنگ اور DG MLTA ملتان کو صحافیوں کے مسائل کے فوری حل کے لیے ضروری اقدامات کی ہدایات جاری کر دی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ صحافیوں کا تحفظ اور ان کے مسائل کا حل پنجاب حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے اور صحافتی برادری کو درپیش مسائل کے حل کے لیے اقدامات جاری رکھے جائیں گے۔ حکومت پنجاب کا GB کے نوجوانوں کے لیے بڑا تعلیمی اقدام، وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے 500 طلباء میں 6 کروڑ روپے سے زائد کی اسکالرشپس تقسیم کر دی ہیں۔ قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت میں گلگت بلتستان کے طلباء میں اسکالرشپس تقسیم کرنے کے لیے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جہاں وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے 500 طلباء میں 6 کروڑ سے زائد کی اسکالرشپس تقسیم کی ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر تعلیم نے کہا کہ گلگت کے طلباء کے لیے اسکالرشپ کی صورت میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا خصوصی تحفہ لے کر آئے ہیں۔ پنجاب کے تعلیمی وسائل میرٹ پر پورا اترنے والے ہر صوبے کے نوجوان کے لیے ہیں۔ قصور ڈسٹرکٹ جیل میں منشیات فروشی کے مقدمے میں قید ملزم دوران عدالت انتقال کر گیا۔ دوران قید طبیعت خراب ہونے پر اسے علاج کے لیے لاہور جنرل اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ دوران علاج جاں بر نہ ہو سکا۔ جیل حکام اور پولیس نے ضروری قانونی کارروائی مکمل کرنے کے بعد متوفی کی میت ورثاء کے حوالے کر دی گئی۔ اوکاڑا کے سابق رکن قومی اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما کیپٹن ریٹائرڈ رائے غلام مجتبیٰ کھرل انتقال کر گئے۔ رائے غلام مجتبیٰ کھرل 2008 کے عام انتخابات میں قومی اسمبلی کے حلقہ NA 143 اوکاڑا سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے تھے اور سابق وفاقی پارلیمانی سیکرٹری برائے داخلہ بھی رہے۔ وہ مختلف ادوار میں اوکاڑا کے سیاسی منظرنامے میں فعال کردار ادا کرتے رہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی سرگرمیوں میں بھی متحرک رہے۔
पाकपतन के नवाही गांव में 11,000 केवी बिजली की लाइन दरख्तों में उलझ गई है। मकीनों का कहना है कि खराब मौसम में शॉर्ट सर्किट के बायस मुख्तलिफ वाक़यात भी रूनमा हो चुके हैं और बिजली की तारों से टकराव के बायस कई मरतबा दरख्तों में आग लग चुकी है। अहले इलाका ने ये मुतालिबा किया कि बिजली की लाइन को दरख्तों से महफूज फासले पर मुंतकिल किया जाए ताकि हादसात का खतरा खत्म हो और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। नौशहर फिरोज में आटे की कीमत में मुबैना मनमाना इजाफा। सरकारी कीमत 110 रुपए की बजाय मार्केट में आटा 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगा है। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरो। नौशहर फिरोज जिले भर में आटे की कीमत में होशरबा इजाफा देखने में आ रहा है। जहां सरकारी मुकर्रर करदा कीमत 110 रुपया फी किलो है, मगर दुकानदार आटा 150 रुपया फी किलो तक फरोख्त कर रहे हैं, जबकि सरकारी नरक और बाजार के नरक में 40 रुपया फी किलो वाज़ेह फर्क मौजूद है, जिस पर शहरियों का कहना है कि जो आटो की कीमतों में बेतना इजाफा किया है, 140-150 रुपए किलो इधर थारू शाम के अंदर फरोख्त हो रहा है। जिला नौशहर फिरोज के शहर थारू शाम में हम सिंध हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि आटे की कीमत को जो सिंध ने मुकर्रर रेट देखा है 110 रुपए 100 रुपए किलो, इस पे लाया जाए और इनके खिलाफ जो मुनाफाखोर जो ब्लैक में आटा बेच रहे हैं 140-150 रुपए किलो, सिंध फ्लोर मिल से या चक्की वाले या और भी हैं जो दुकानदार हमें 140 रुपए 150 दे रहे हैं, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और हम तक आटा जो 110 रुपए और 100 रुपए किलो तक पहुंचाया जाए। हम सिंध हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमारे जो इस आटे के कीमतों पर जो बहुत ज्यादा गौर करे। फिरोज जिले में जो आटे की कीमतें हैं वो अभी आसमान को जाके लगी हैं। जिला भर की जो 5 तहसीलें हैं वहाँ पर आटा 140-150 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है, जिसके बाद आम दिहाड़ीदार मजदूर शदीद मुश्किलात का शिकार है। जब 5 असिस्टेंट कमिश्नर हैं, लेकिन मुनाफाखोर जो है ताजिर हैं, चक्की मालकान और दूसरे हैं, उनके खिलाफ अब तक कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं आई। जिस रोजमर्रा इस्तेमाल की बुनियादी जरूरत आटा भी उनकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। शहरियों ने जिले इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल एकाम से मुतालबा किया है कि सरकारी नरक पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाई जाए, मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मार्केट में सरकारी नरकनामे पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। कैमरा टीम के साथ ब्यूरो चीफ एम हसन सोमरो, टीवी टुडे, नौशहर फिरोज। रुख करते हैं सक्खर का, जहां दो ग्रोहों के दरमियान तनाज़े पर एक ग्रुप का एहतजाज। मुजाहिरीन ने मुख्तलिफ फरीक पर हमलों और पुलिस की मुवज़्ज़रा नाइंसाफ़ी का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया है। मुजाहिरीन के मुताबिक अगले रोज होटल पर दोबारा हमला और फायरिंग के नतीजे में नसर मलिक, यासिन मलिक, रमजान मलिक, असद मलिक और कामरान जख्मी हुए जो अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। उनका मजीद कहना था कि इस्माइल मलिक को मिलिट्री रोड पर मुबैना तशद्दुद करके जख्मी किया गया। मुजाहिरीन ने इल्जाम आयद किया कि पुलिस ताहाल FIR दर्ज नहीं कर रही और मुतालिबा किया कि मुकदमा दर्ज करके मुबैना मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। टंडो आदम में मरियम गर्ल्स हाई स्कूल पर मुबैना कब्जे के खिलाफ मुख्तलिफ तंजीमों और तलबा का एहतजाज। मुजाहिरीन ने स्कूल से कब्जा खत्म कराने का मुतालिबा किया है। मुकर्रीन का कहना था कि मुबैना कब्जा करने वालों ने गर्ल्स स्कूल की दीवार तोड़ दी है, ताहम इंतजामिया की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई। उन्होंने कहा कि गर्ल्स स्कूल पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और DC सांगड़ से मुतालबा किया गया कि स्कूल को मुबैना कब्जे से वागुजार करा के जिम्मेदार अनासर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तहसील जामपुर के नवाही इलाके मौजा दरेगड़ी के मेहनत कश मोहम्मद अली के मुताबिक उनकी बेटी को 8 साल कबल मुबैना तौर पर अगवा किया गया था। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज हुआ, ताहम खानदान के मुताबिक अब तक मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं किए जा सके। तफसीलात बताएंगे साजिद लाशारी। जी हम मौजूद हैं तहसील जामपुर के इलाका मौजा दरिगड़ी, 25 किलोमीटर जामपुर शहर से आगे है तहसील जामपुर का इलाका है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली जोगियानी, जिसकी बच्ची को 7-8 साल पहले अगवा कर लिया गया था। उसका जो जिसके साथ उसका निकाह कराया गया था वो पुलिस मुकाबले में फौत हो चुका है। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली जोगियानी, इनसे हम जानते हैं बच्ची अगवा कर गए अल्लाह बख्श सोबदार वगैरह जरा निकाह वाला करा, निकाह दिखाया ने अल्लाह बख्श दे ना दे होते हैं। अल्लाह बख्श पुलिस मुकाबले मारा गया, फौत थी गए
ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਆਦਨ ਕੋ ਸੋਬਦਾਰ ਬੱਦੀ ਪੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਸੋਬਦਾਰ ਅੱਲਾ ਬਸ਼ਕਦਾ ਭੇਰਾ ਹੈ ਸੋਬਦਾਰ ਤੇ ਵਲ ਬਸ਼ਾਮ ਕੌਮ ਪਿਤਾਫੀ ਉਹ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੱਦੀ ਕੁੱਟੀ ਉਹਦਾ ਜੰਗ ਤਰੋੜੀ ਉਤਾਈ ਜੱਲੀ ਪੈਂਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਇਤਨਾ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ ਇਹ ਆਦਨ नेक अफसर आला अफसरान ने सारा बच्ची को बाजियाब करा सकते माँ प्यो वारसे के हवाले किया वजे सही। जी हमारी इनसे बात हो रही थी, ये थे मोहम्मद अली जोगियानी जिनकी बच्ची को 7-8 साल पहले अगवा हुई थी। इन्होंने वजीर आला पंजाब से पुरजोर मुतालबा किया है कि खुदारा मेरी बच्ची बाजियाब कराई जाए, अगर वो हमारी ना बने बेशक वापस दे दी जाए, लेकिन एक दफा हमें मिलवाया जरूर जाए जी। और नाज़रीन खबर आपको दें बहावल नगर से, जहां डिप्टी कमिश्नर सैयद मोहम्मद अब्बास शाह का डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस का दौरा, इमारत, इंतजामी उमूर, रिकॉर्ड और दफ्तरी मामलात का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों को दफ्तरी उमूर की बरवक्त तकमील और रिकॉर्ड की मुनासिब देखभाल यकीनी बनाने की हिदायत की हैं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सरकारी दफातर में नज़्म ज़ब्त, शफाफियत और मुअस्सर कारकर्दगी के साथ अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कमिश्नर बहावलपुर दबियन इरफान अली काठिया ने डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रजा के हमरा पेरा फोर्स सदर की ज़ेर तामीर अमारत का दौरा किया है। उन्होंने मुतल्लिका हुकाम को हिदायत की कि मंसूबे में मेयार पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाए और हुकूमत पंजाब के मुकर्रर मेयार और ज़वाबित के मुताबिक तामीराती काम यकीनी बनाया जाए। कमिश्नर ने मंसूबे को शफाफ अंदाज में मुकर्रर मुद्दत के अंदर मुकम्मल करने और अवामी फलाह से मुतालिक तरक्याती मंसूबों की मुअस्सर निगरानी जारी रखने की हिदायत की। जामशोरों के मानचंद में एलिमेंट्री स्कूल की तामीर में मुबैना रुकावटों और धमकियों के खिलाफ प्रिंसिपल अदालत पहुंच गयी। प्रिंसिपल ने एडवोकेट आगा काशिफ हुसैन के तवस्सुल से जामशोरों की अदालत में दरख्वास्त दायर करते हुए इल्जाम आयद किया है कि ताज मोहम्मद शोरो, खमीसो शोरो और दीगर बासर अफराद मुबैना तौर पर स्कूल की इमारत में रुकावटें डाल रहे हैं। उनका कहना है कि सूरत हाल के बायस 250 से ज्यादा बच्चों की तालीम मुतासिर हो रही है। प्रिंसिपल ने इंतजामिया और पुलिस से मुतालबा किया है कि स्कूल, असातिज़ा और बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके उनका तालीमी मुस्तक़बिल महफूज बनाया जाए। ओकाड़ा डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने लाहौर के थाना किला गुजर सिंह में वकला के साथ मुबैना पुलिस गर्दी और बर्बरियत की मजम्मत करते हुए मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। सेक्रेटरी बार तारिक नसीम ने कहा कि वकला के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने और मुबैना तशद्दुद पर महज मजम्मत या मुअत्तली काफी नहीं, जिम्मेदारान के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। उन्होंने आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर से मुतालबा किया कि जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी कार्रवाई और वकला से बाज़ाब्ता मुआसरत की जाए। खानेवाल अंजुमन ताजरान कचहरी बाजार के सदर हाजी मोहम्मद यासीन रहमानी ने सदर ट्रेडर्स चैम्बर शेख अकमल के हमरा कचहरी बाजार में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें ताजर बराती से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू की गई। मजीद जानते हैं राशिद रहमानी की इस रिपोर्ट में। कचहरी बाजार में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रेड चैम्बर खानेवाल के सदर शेख मोहम्मद अकमल ने अपने अहदेदारान के हमरा खसूसी शिरकत की, जहां ताजर रहनुमाओं ने कचहरी बाजार में खुद साख्ता सदारत का दावा करने वाले मुखालफिन के गैर आईनी इक़दाम को शायद तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने जमहूरी तरीके से पूरे आपके कचहरी बाजार के लिए अंत तक मेहनत भी की और हमारे साथ बिल्कुल हर ताजिर के तहफ़्फ़ुज़ात के लिए हमारे साथ कदम ब कदम चले। हम इस कोई कचहरी बाजार के सदारत के साथ वेल्ड हुए नहीं हैं, हम खिदमत के लिए आए। अगर किसी दोस्तों को कचहरी बाजार वालों को मेरी खिदमत नहीं चाहिए, बंदा हाजिर है वोट के जरिए, अदम एतमाद के जरिए जो दुनिया में एक कानून है उसके मुताबिक वो आए और मुझे जनाब अपनी अक्सरियत शो करे। मैं जनाब उसको हार भी पहनाऊंगा, सलाम करके चला जाऊंगा और उसका साथ भी दूंगा। इस मौका पर मेजबान सदर हाजी मोहम्मद यासीन रहमानी ने कहा कि कचहरी बाजार के ताजरों का एतमाद मेरी असल ताकत है। सदारत किसी खुद साख्ता ऐलान से नहीं बल्कि ताजर बरादरी के हकीकी एतमाद से मिलती है। कैमरा टीम के हमरा राशिद रहमानी, टीवी टुडे खानेवाल।
उधर शोहदाद कोर्ट में सिंधहारी आबाद कार इत्तेहाद का नहरों में पानी की अदम दस्तियाबी और रहनुमाओं के खिलाफ मुबैना झूठा मुकदमा दर्ज किए जाने पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने पानी की फराहमी और मुकदमा खारिज करने का मुतालबा कर दिया। मुजाहिरीन ने वारिस केनाल और SKT बैराज से निकलने वाली मुख्तलिफ नहरों में पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ आवाज बुलंद की, जबकि इरिगेशन अमले की जानिब से मीरू खान थाने में इत्तेहाद के रहनुमाओं मोहसिन काजी, हबीबुल्लाह और दीगर के खिलाफ मुबैना झूठा मुकदमा दर्ज करने पर एहतजाज किया। उन्होंने मुतालबा किया कि नहरों में पानी की फराहमी यकीनी बनाई जाए और रहनुमाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज किया जाए। और अभी आपको बताएंगे, पाकपतन में जश्न आजादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर में सब्ज़लाली परचमों, झंडियों और बैजेस के स्टॉल सज गए। शहरी अपने घरों, दुकानों और गाड़ियों को कौमी परचमों से सजाने के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं। जैसे जैसे 14 अगस्त करीब आ रही है, पाकपतन में जश्न आजादी की रौनकें और मिली जोश और जज्बा भी मजीद बढ़ता जा रहा है। मुरीदके में भी 14 अगस्त की आमद के साथ ही जश्न आज़ादी की रौनकें बढ़ने लगीं। बाजार कौमी परचमों, झंडियों और सब्ज और सफेद मलबूसात के स्टॉल से सज गए। शहरियों का कहना है कि आज़ादी एक असीम नेमत है और वो हर साल की तरह इस मर्तबा भी यौम आज़ादी को भरपूर जोश और जज्बे के साथ मनाएंगे। 14 अगस्त करीब आने के साथ शहर में जश्न आज़ादी की रौनकों में मजीद इजाफे का इम्कान है। मुल्क भर की तरह कान्हा में भी 14 अगस्त की तैयारियां जोरों पर हैं। बाजारों में सब्ज़लाली परचमों के स्टॉल सज गए। बच्चे, नौजवान और बुजुर्ग जश्न आज़ादी के रंगों में रंग गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा TV टुडे कलीमुल्लाह से। जी कलीमुल्लाह, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कान्हा में। मुल्क भर की तरह कान्हा को सब्ज़ हलाली परचम के साथ सजा दिया गया है। जगह जगह पर स्टॉल जो है वो लग गए हैं, लोग खरीदो फरोख्त कर रहे हैं। हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है भैया? मोहम्मद अमजद। अच्छा अमजद भाई, जश्न आज़ादी को किस तरह मनाना चाहिए? जश्न आज़ादी को बच्चे जो उनसे बहुत खुश होते हैं। भी 14 अगस्त वाले दिन आज़ाद हुए, तो यहाँ पे झंडियाँ लेके जाएं, अपने घर में सजाएं, बैज लगाएं, जो उनसे कपड़े लेके जाएं। लेकिन ये जो बाजे हैं ना, ये नहीं होने चाहिए जो इंसान। ठीक है, हाँ जी, पाँ करके नहीं, हमें छाँ करके जो इंसान भी अपना। ठीक है, तो अगर जो वाजे लेके दे रहा है अपने बच्चों को, यही एक दरख्त लेके जो उनसे लगा दे तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा काम जो उनसा। ठीक है, तो हमें चाहिए अपने बच्चों को जो उनसा भी समझाना, ना कि उनको हमें बाजे लेके देने हैं। हमने नहीं लेके देने, मैंने अपने बच्चों को किसी को बाजे नहीं लेके दिए। जो का ये पैगाम है कि हमें अपने बच्चों को बाजे जो है वो नहीं लेकर देने, बाजे ना बजाएं। हमने पाँ करके नहीं, पाकिस्तान पर छाँ करके जश्न आज़ादी को मनाना है। 79 साल हो गए हैं पाकिस्तान को आज़ाद हुए और हम जो है उसी बाजे बजाने में लगे हैं। इसलिए इन्होंने बहुत अच्छा पैगाम दिया। फातिहा ख्वानी करें, शहदा की कुर्बानियों को याद करें और उनके लिए साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी का एहतमाम करें। मुल्क भर की तरह सादकाबाद में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां जोश और जज्बे से जारी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज़लाली परचमों और जश्न आज़ादी के स्टॉल सज गए। ताहम महंगाई के बायस खरीदारों की तादाद भी कदरे कम नजर आ रही है। मजीद तफसीलात बताएंगे सादिकाबाद से सरफराज खान। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की आमद के साथ ही शहर में छोटे बड़े स्टॉल जो हैं वो सजा दिए गए हैं, जहां से शहरी झंडे, बैजेस और अपने घरों के लिए झंडे खरीद रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। जी माशाल्लाह, हर साल की तरह इस साल भी स्टॉल सज चुके हैं, लेकिन लोगों में जोश और जज्बा नज़र आ रहा है। महंगाई की वजह से लोग आते हैं, सामान दे के चले जाते हैं। हुकूमत से गुजारिश है थोड़ी सी महंगाई कम की जाए, ताकि लोग ये आज़ादी का दिन अपना जोश व खरोश के साथ अपने घर से जा सकें। और स्पेशल मैसेज है कि अपने घर दरख्त लगाएं ताकि पोल्यूशन कम हो और ग्रीन पाकिस्तान बन सके। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है शहरी जो है जोश व खरोश से जो है वो जश्न आज़ादी का सामान जो है वो खरीद रहे हैं। और इन्होंने आखिर में तमाम शहरियों को दरख्वास्त की कि दरख्त लगाएं ताकि हमारा पाकिस्तान ग्रीन और सब्ज नज़र आए। जी कोट राधा किशन में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। दुकानदारों ने अपनी दुकानों पर कौमी परचम, झंडियों और जश्न आज़ादी के सामान के स्टॉल सजा लिए। मजीद जानते हैं रियाज अहमद से।
हाँ जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं कोटरा किशन में, जहां पर मुल्क भर की तरह कोटरा किशन में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। हमारे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इस हवाले से इनसे जानते हैं। जी सर, 14 अगस्त 1947 को बना तो था, लेकिन 14 अगस्त को पाकिस्तान बने को अब तकरीबन 79 ईयर हो चुके हैं। लेकिन 79 ईयर में पाकिस्तान में जो पहली बात जिस तरह खुशियाँ मनाई जाती थी ना, वो ख़त्म होती जा रही है। हर बंदे के चेहरे पे मायूसी है, महंगाई की वजह से, बिजली के बिलों की वजह से। तो 14 अगस्त अब तो सिर्फ बच्चे ही मनाते हैं, बड़े तो सिर्फ अपनी दिहाड़ी के चक्कर में, रोज़गार के चक्कर में वो बाज़ारों में या किसी भी तरीके से रोज़गार कमाने के चक्कर में होते हैं। 14 अगस्त वाले दिन भी आप देखेंगे लोगों के चेहरों पर मायूसी होगी, दुकानदार हो, मेहनत मजदूरी करने वाला हो। 14 अगस्त की रूह ख़त्म हो गई है। मतलब है कि खुशी जो होती थी ना पहले, अब तो हुक्मरानों ने ऐसा मतलब बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान का। अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान का। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि उसका कहना है कि ये जो 14 अगस्त का दिन है ये हमारे बुजुर्गों की मेहनत का नतीजा है। लेकिन क्या है जी, जो पहले शौक था, जो पहले वलवले थे, वो अब नहीं रहे, क्योंकि इस महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। दुकानदार है तो दुकानदार भी अपने कारोबार में बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास ग्राहक नहीं है। किस वजह से नहीं है कि जी उनके जो है महंगाई ने उनको इस हद तक गिरा दिया कि उनके पास अब ग्राहक आता ही नहीं, क्योंकि ग्राहक कहाँ से आए कि ग्राहक के पास पैसे नहीं है। रेनाला खुर्द में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बाजार सब्ज हिलाली पर शमूल झंडियों और बैजेस से सज गए। बच्चों और नौजवानों में भी खासा जश्न खरोश पाया जा रहा है। मजीद बताएंगे राना उस्मान। जी बहुत शुक्रिया। मुल्क भर की तरह रेनाला खुर्द में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। हर तरफ सब्ज हलाली परचमों की बहार है। यहाँ शहर भर में मुख्तलिफ किस्म के 14 अगस्त के हवाले से स्टॉल सज चुके हैं। यहाँ पर लोगों की काफ़ी तादाद खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल, 14 अगस्त की ख़रीदारी करने के लिए हम अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कुछ स्टॉल्स पर आए हैं, जहाँ पे बच्चों के झंडे वगैरह ख़रीद रहे हैं, झंडियाँ वगैरह ख़रीद रहे हैं और कुछ ट्राउज़र शर्ट, टी शर्ट वगैरह, फ्रॉक्स वगैरह ख़रीद रहे हैं। 14 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है, ठीक है, और हमें इस पूरे जोश तरीके से मनाएंगे। जी जैसा कि आपने शहरी की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि 14 अगस्त हमारा आज़ादी का दिन है। हमारे आबाओ अजदाद की लाजवाल कुर्बानियों की वजह से मुल्क मार्ज़ वजूद में है। इस दिन की मुनासबत की वजह से हम अपने बच्चों को यहाँ पर ख़रीदारी करवा रहे हैं, ट्राउज़र, टी शर्ट और दीगर मलबूसात लेकर दे रहे हैं। गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी हम 14 अगस्त भरपूर तरीके और जोश व खरोश से मनाएंगे। जी वहाँ कमालिया में भी 14 अगस्त की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। बाजारों में सब्ज हिलाली परचम, झंडियां, बैजेस और बच्चों के लिबास के स्टॉल सज गए। मजीद अपडेट कर रहे हैं कमालिया से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद। मुल्क भर की तरह कमालिया में भी जश्न आज़ादी की खुशियां जोशो खरोश से मनाने के लिए लोगों ने स्टॉलों का रुख कर लिया है, जहां पर झंडे और झंडियां खरीदने में लोग दिखाई दे रहे हैं और दिलचस्पी ले रहे हैं। हमारे साथ शहरी भी मौजूद हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि जश्न आज़ादी के हवाला से उनकी तैयारियां किस हद तक मुकम्मल कर ली गई हैं। जी ये अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान की आज़ादी के हवाले से हर मुसलमान, हर पाकिस्तानी अपने दिलो जान से खुश है। और याद रखिएगा कि ये मुल्क पाकिस्तान हमने बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया है और ये कलमे की बुनियाद पे हासिल किया गया मुल्क है। जो नारा लगाया था अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मुल्क पाकिस्तान इस्लाम के लिए बना है और हजूर के गुलामों को पैगाम देना चाहूँगा, जश्न आज़ादी दिल खोल के मनाएं। ये इस्लाम का भी हिस्सा है, ये ईमान का भी हिस्सा है और मुल्क पाकिस्तान के साथ, वतन अजीज़ के साथ मोहब्बत की अलामत। और माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ सारे दोस्त अहबाब, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान सारे बड़े खुशी के साथ इस जश्न आज़ादी की तैयारियों में मगन हैं और खूब तैयारियां कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जैसा कि आपने शहरियों की बात सुनी, शहरी का कहना है कि हम पाकिस्तान की जो जश्न आज़ादी है वो जोशो खरोश से मनाएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद। जी सांगला हिल में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहरी कौमी परचम और बैजेस की खरीदारी में मसरूफ हैं। ख़वातीन बच्चों के लिए सब्ज और सफ़ेद मलबूसात खरीदने लगीं। मज़ीद तफसीलात बताएंगे जुल्फ़िकार अली। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह सांगला में भी जश्न यौम आज़ादी नहायत
जो मनाने की तैयारियां अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। जगह जगह जो है स्टॉल भी सज चुके हैं। यहाँ से शहरी झंडे झंडियाँ और सब्ज़ हलाल भी परचम खरीद रहे हैं। तो मेरे साथ खरीदारी के लिए आए हुए एक शहरी मौजूद है। आइए इनसे जानते हैं कि हम इस साल बल्कि हर साल ही बड़े जोशो खरोश से जश्न योम आज़ादी मनाते हैं। हमारे बच्चे, हम उनको अपने बड़ों की, जो हमने अपने बड़ों से सुनी है कि क्या क्या कुर्बानियाँ दी गई इस मुल्क खुदा दाद के लिए, और हम भरपूर जोशो खरोश से ये दिन मनाते हैं। और ता क़यामत इंशाअल्लाह पाकिस्तान पाइंदाबाद रहेगा और हमारी आने वाली नस्लें भी बड़े जोशो खरोश से और बड़ी खुश उसलूबी से इस दिन को मनाएंगे। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शायरी का कहना है कि ये मुल्क पाकिस्तान हमारा मुल्क है और आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। ये आज़ादी जो है बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल की है। मुल्क के हालात जैसे भी हो तो इंशाअल्लाह ताला जैसे यौम आज़ादी जो भरपूर जोशो खरोश से मनाएंगे। अपने घरों गली बाज़ारों को सब्ज़ हलाली परचमों से सजाएंगे। जी मुल्क भर की तरह सखर में भी जश्न आज़ादी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। शहर के बाजार सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों से सज गए। शहरियों की खरीदारी जारी है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल हफीज की इस रिपोर्ट में। जश्न आज़ादी की आमद में 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। सखर के बाजारों में सब्ज़ हिलाली परचमों और झंडियों की बहार नजर आने लगी है। शहरी बड़ी तादाद में जश्न आज़ादी के हवाले से खरीदारी कर रहे हैं, जबकि बच्चे भी कौमी परचम और सब्ज़ो सफ़ेद लिबास खरीदने में खासे पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। हम यहाँ पे आए बाजार में, झंडे लेने आए, कपड़े लेने आए, टोपी भी लिए और हर चीज ले रहे हैं। हम अपनी जगह भरपूर तरीके से बनाएंगे। जैसे आप जानते हैं बाजार में काम हम दुकान पे बने हुए हैं, हम अपनी जगह भरपूर तरीके से बनाएंगे। झंडे लिए हैं और बाकी सामान भी लेंगे। खवातीन और बच्चे भी जश्न आज़ादी की तैयारियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। दुकानदारों के मुताबिक जश्न आज़ादी के करीब आते ही कौमी परचम, बैजेस, झंडियों और सब्ज़ व सफ़ेद लिबास की खरीदारी में इजाफा हो गया है। शहरियों का कहना है कि आज़ादी एक अजीम नेमत है और उसकी कदर करना हम सब की जिम्मेदारी है। लेकिन जी जिंदा दिल कौमें अपना जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाती हैं और हमारी भी बाजार में आमद की वजह यही है कि हमने अपने घरों को जो है पाकिस्तानी परचमों से सजाना है, अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने हैं और उसके अलावा बेजेस वगैरह लेने हैं। क्योंकि देखिए पाकिस्तान की आज़ादी में हमारे अकाबरीन, हमारे बड़ों की कुर्बानियाँ हैं। हमें पाकिस्तान की खुशहाली, तरक्की और इस्तेकाम के लिए काम करना चाहिए। हम इसलिए जोशो खरोश से मनाते हैं ताकि आने वाली नस्लों को पता चल सके कि पाकिस्तान हमारा मुल्क है। सखर में जश्न आज़ादी की तैयारियों के दौरान शहरियों का जोशो जज्बा देखने के काबिल है। हर तरफ सब्ज़ हिलाली परचमों की बहार और वतन से मोहब्बत के रंग नुमायां हैं। कैमरामैन उसामा के साथ अब्दुल हफीज, टीवी टुडे, सखर। सांगढ़ के शाहपुर जाकर में यौम आज़ादी की तैयारियों के सिलसिले में तलबा की रैली, सब्ज़ हिलाली परचम उठाए पाकिस्तान और पाक फौज के हक में नारेबाजी की गई। तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ मुमताज मक्सी की इस रिपोर्ट में। शाहपुर जाकर गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी कैंपस स्कूल में वतन अजीज पाकिस्तान के 79वें जश्न आज़ादी के प्रोग्राम की तैयारियों के हवाले से प्रिंसिपल अब्दुल हमीद डायरी की सरबराही में तलबा की बहुत बड़ी तादाद ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम उठाकर रैली निकालकर पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी के हक में नारेबाजी की। इस मौके पर रैली के शुरा ने टीवी टुडे से बातचीत करते हुए कहा कि आज़ादी एक नेमत है, इस नेमत को हमारे बुजुर्गों ने बड़ी ही बेबहा कुर्बानियां देकर हासिल किया है। आज़ादी की अहमियत आजकल आप जान सकते हैं कि चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा अफरा तफरी का आलम है। जो मुल्क आज़ाद नहीं है वो किस तरह से कुर्बानियां दे रहे हैं और किस तरह से कौन कौन सी मुसीबतें वो फेस कर रहे हैं, ये नौजवान नस्ल सब देख रही है। 14 अगस्त हमने बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल किया। हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर ये मादरे मिल्लत हासिल किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम वतन अजीज़ में आज़ादी और सुकून के साथ रह रहे हैं, उसकी बदौलत उसमें बड़े से बड़ा हाथ हमारी पाक आर्मी का है, जिन्होंने सरहदों की हिफाजत की और दुश्मन के नापाक अज़ाइम को ख़त्म कर दिया है। ख़ास तौर पर जो मई में मार्का हक में जनरल आसिम मुनीर साहब, हाफिज़ साहब ने जो कुर्बानियाँ, ये
तारीखी एक बड़ी कुर्बानी है। ये दुनिया में दिलेर लीडर के निस्बत से सामने आए हैं। और इसका हमारा एक ही मकसद है कि तलबा के अंदर यकजहती, तलबा के अंदर जो है वो कौम की तरक्की का एहसास भी पैदा हो सके और उन जवानों की जो है वो कुर्बानियों को भी याद कर सके जो पाक फौज ने अपने सरहदों पर दी थी। रैली के शुरा ने जश्न आज़ादी के दिन को पुरजोश तरीके से मनाने का अज़म किया। कैमरामैन सदाम अली के साथ मुमताज अली मक्सी, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे, सांगहाट। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। अभी आपको बताएं, आज़ादी के दिन की आमद के मौका पर नज़रिया पाकिस्तान को उजागर करने के लिए पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए तमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। मजीद जानते हैं आमिर रजा से। लेकिन यौम आज़ादी के हवाले से पाकिस्तान भर की तरह गुजरात में जो मुख्तलिफ तकरीबात है उनका सिलसिला जारी है। इस वक्त हम मौजूद हैं गुजरात प्रेस क्लब में, जहां पर जो है पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानब से जो है ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। इस वक्त जो है तर्जमान पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं कि आज के हवाले से क्या कहना चाहते हैं और यौम आज़ादी के हवाले से वो क्या पैगाम देना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। हम सब इस बात को जानते हैं कि ये यौम आज़ादी एक बड़े मुख्तलिफ मौके पे आ रहा है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी दी है। हम इस वक्त मिडल ईस्ट में और मिडल ईस्ट से आगे तुर्की तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक दफाई मुआहिदा हो चुका है। इससे पाकिस्तान को एक मजबूती मिली। हजरत इस अमर किया कि हम मुल्क को अंदर से मजबूत करें, तवाना करें, ताकतवर करें, इत्तेहाद और इत्तफाक का एक पैगाम हम पूरी दुनिया को दें। इसी हवाले से आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जिसमें मजहबी सियासी जमातों के लोग शरीक हुए हैं और ये सिलसिला पूरे मुल्क के अंदर 14 अगस्त तक इसी तरीके से चलेगा। जी बिल्कुल, उनका यही कहना था कि पाकिस्तान जिस तरह मक्का मुआहिदा में भी पाकिस्तान तुर्की के साथ जो है वो इस वक्त चल रहा है और इसके साथ साथ हमें भी पाकिस्तान की अवाम को भी मुतादा होकर चलना पड़ेगा ताकि दुश्मन की मैली आंख पाकिस्तान की तरफ ना देख सके। जी कसूर में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनकाद, हजारों अफराद की भरपूर शिरकत, कौमी परचमों के साथ शुरा ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली का आगाज बाईपास से हुआ जो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई कचहरी चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में कौमी परचम उठा रखे थे और पूरे जोश और जज्बे के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए। रैली के दौरान कसूर की फिजा मिली जोश और जज्बे और हुब्बुल वतनी के नारों से गूंजती रही। मियांवाली में जश्न आज़ादी की आमद के साथ ही शहर सब्ज़ हिलाली रंग में रंगने लगा। गलियां, बाजार और चौक कौमी परचमों से सज गए, जबकि जश्न आज़ादी की खरीदारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्टॉल्स भी सज गए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ आफ्ताब हुसैन की इस रिपोर्ट में। चौदह अगस्त की आमद आमन है और मियांवाली में आज़ादी का जश्न अभी से नुमायां दिखाई देने लगा है। शहर के बाजारों से गलियों मोहल्ले तक सब हिलाली परचमों, झंडियों और कौमी रंगों की बहार है। हर तरफ वतन से मोहब्बत का जज्बा नजर आ रहा है। बड़ी खुशी थी पई है कि 14 अगस्त जिस टाइम आंदा है तो असा अपने बड़े शौक दे नाल पाकिस्तानी जेड़ा फ्लैग है घिन के वहने अपने घरों दे उत्ते लेने, अपने गली मोहल्ला नू सजाने आ। उस बाद मैं बच्चा कहानी चाह ते कौमी परचम दे जेड़े बने हुए लिबास हैं वो घिन के वहदा पिया अपने बच्चों नू पवैसूं, क्योंकि 14 अगस्त वाली दिहाड़ जेड़े है बच्चों नू खूबसूरत बना के सूं, क्योंकि साडे वड्डे जेड़े हैं उन्हां बड़ियां कुर्बानियां दे के ये 14 अगस्त जेड़े है हासिल करने वास्ते असां ये मुल्क हासिल कीता, कुर्बानी दे के ता साडे काने खुशी दा लम्हा होन। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी स्टॉल सज गए हैं, जहाँ कौमी परचम, बैजेस, झंडियाँ, सब्ज लिबास और बच्चों के लिए मुख्तलिफ अशिया दस्तयाब हैं। शहरी और बच्चे जोश व खरोश के साथ खरीदारी करते दिखाई दे रहे हैं। भाई मैं झंडा किदा लाला ते हुण ए किंदा पिया जी कपड़े अपने पैंट शर्ट ते वात जी काजवाज के वजने झंडियां लावणी घर गली पूरी सजावणी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। शहरियों का कहना है कि आज़ादी सिर्फ एक दिन मनाने का नाम नहीं, बल्कि ये वतन से मोहब्बत, इत्तेहाद और जिम्मेदारी का एहसास है। इस बार भी जश्न आज़ादी भरपूर कौमी जज्बे के साथ मनाया जाएगा। कैमरा टीम के साथ आफ्ताब हुसैन, टीवी टुडे, मियांवाली। और दूसरी जानिब कोट मोमिन के इलाका गौस मोहम्मद वाला में जदीद ज़रई तरीकों के फ़रोग के लिए बैनुल-अक़वामी माहिरीन की आमद। अमरीकी और जनूबी अफ्रीका के ज़रई मॉडल्स को मकामी हालात के मुताबिक आजमाने पर काम शुरू कर दिया गया। इसी सिलसिले में बैनुल-अक़वामी माहिरीन और मुतल्लिका वफ़द पाकिस्तान पहुंचा है, जहां जदीद ज़रई तरीकों को मकामी ज़मीन, मौसमी हालात और किसानों की ज़रूरियात के मुताबिक आजमाने का अमल जारी है। मुतल्लिका हल्कों के मुताबिक तजुर्बात का मकसद ज़रई पैदावार में इजाफा, काश्तकारों के अखराजात में कमी और किसानों के लिए जदीद और पायदार तरीकों को फ़रोग देना है।
सरगोदा में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई ताउन के हवाले से मोटरवे पुलिस की सरकारी इमारतों पर खुसूसी चरागाह। रात के वक्त खूबसूरत मंजर ने कौमी जज्बे की अक्कासी की। SP मोटरवे पुलिस फैसल अकरम के मुताबिक ये इकदाम पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दिफाई ताउन की मुनासबत से जारी तकरीबात का हिस्सा है और तमाम इंतजामात सरकारी हिदायत के मुताबिक मुकम्मल किए गए हैं। रात के वक्त खुसूसी चरागाह कौमी जोश व जज्बे की खूबसूरत अक्कासी करता दिखाई देता है। शेखुपुरा में कौमी अक़लियती दिन के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात और रैलियों का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर राना आदिल तसव्वुर ने कहा कि अक़लियती बरादरियाँ पाकिस्तानी कौम का अहम और काबिल कदर हिस्सा हैं और आज़ादी से आज तक मुल्की तामीर और तरक्की में गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों ने मुख्तलिफ शोबों में काबिल तहसीन किरदार अदा किया है। तकरीब के दौरान मसीही बरादरी के नुमाइंदों के हमरा केक भी काटा गया, जबकि इख्तिताम पर मुल्की तरक्की, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। मुल्क भर की तरह ननकाना साहब में भी कौमी अक़लियती दिन जोश और जज्बे से मनाया जा रहा है। जिला भर में मुख्तलिफ तकरीबात का इनकाद अक़लियती बरादरी से इज़हार यकजहती जारी है। मज़ीद बताएंगे ब्यूरो चीफ राय शाहनवाज भट्टी। जी बिल्कुल, पाकिस्तान की तरह ननकाना साहब में भी अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है। इस वक्त मेरे साथ एक मसीह रहनुमा मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना है। जी बिल्कुल, हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं मुल्क पाकिस्तान के लिए और आज ख़ास तौर पर हम यहाँ पर मिनार्टी डे के हवाले से इकट्ठे हैं और पाकिस्तान के अंदर तमाम मसीही और जितनी दूसरी अक़लियतें हैं वो भरपूर आज़ादी के साथ अपनी इबादत को सर अंजाम देती हैं और क़ायद आज़म की उस तकरीर के मुताबिक जब उन्होंने कहा कि तमाम मिनार्टी जो हैं वो अपनी इबादत आज़ादी से करने के लिए अपने अपनी इबादतगाहों में जा सकते हैं, तो हम खुदा के शुक्रगुज़ार हैं अपनी गवर्नमेंट के लिए और ख़ास तौर पर अपनी फ़ौज के लिए जो हमारी हिफाजत के लिए और हमारी तमाम तरह के में सहूलतें पहुँचाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। तो मैं खुदा का खादम होते हुए तमाम अदारों के लिए, अपने प्राइम मिनिस्टर के लिए, अपनी चीफ मिनिस्टर के लिए और अपने सिपा सलार के लिए दुआ गो हूँ कि खुदा ने और ज़्यादा बरकत दे। जैसा कि आपने सुना कि उनका कहना था कि हम पाकिस्तान में महफूज और आज़ाद हैं। जी नासरीन, खानेवाल में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन बाहमी दिफाई ताउन के हवाले से इज़हार यकजहती जिला इंतजामिया के ज़ेर तमाम सेमिनार के बाद फ्लैग मार्च भी किया गया। खानेवाल के जिला कौंसिल हॉल में जिला इंतजामिया के ज़ेर तमाम पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के माबैन बाहमी दिफाई ताउन और तीनों बरादर ममालिक से इज़हार यकजहती के लिए पुरवकार सेमिनार मुनक़िद हुआ। मुक़र्रीन ने कहा कि तीनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात अख़ुव्वत, एतमाद और मुश्तरका मफादात पर मबनी हैं और दिफाई ताउन खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत पेशरफ्त है। घारू में शहीद वतन बशीर खान कुरैशी की 67वीं सालगिरह के हवाले से तकरीब। मुकर्रीन ने सिंध के हुकूक के लिए उनकी जद्दोजहद को खराज अक़ीदत पेश किया। मुकर्रीन ने बशीर खान कुरैशी की सियासी और कौमी जद्दोजहद और सिंध के हुकूक के लिए खिदमत को खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौका पर साईं कादिर बख्श के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया गया और उनकी मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। सोहबतपुर में लोकल सर्टिफिकेट के हुसूल के लिए दरख्वास्त गुजारों के इंटरव्यूज का इनेकाद किया गया। लोकल कमेटी, यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी, पटवारी और तहसीलदार की तस्दीक के बाद कवायद और ज़वाबित पर पूरा उतरने वाले उम्मीदवारों को लोकल सर्टिफिकेट के लिए क्लियर कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ज़हीर अहमद ने कहा कि लोकल सर्टिफिकेट के इजरा में शफाफियत अव्वलीन तरजीह है। जंग में तालीमी शोबे से वाबस्ता अदारों के दरमियान ताउन का अहम मुआहिदा तय पा गया। प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेलफेयर एसोसिएशन और यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज के दरमियान MOU साइन हो गया। मजीद क्या अपडेट से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ मुनीर अब्बास सुहेल। जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेलफेयर एसोसिएशन जंग और यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट हेल्थ एंड साइंसेज के दरमियान आज जंग के अंदर एक MOU की तकरीब की गई है, जिसमें मैट्रिक पास तलबा के लिए एक रोज़गार की स्कीम लॉन्च की गई है, जिसके हवाले से हम जानते हैं यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट हेल्थ एंड साइंसेज के प्रिंसिपल राजा मकसूद हुसैन साहब से कि वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जंग पंजाब मेडिकल फैकल्टी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से रजिस्टर्ड इदारा है, जिसमें हम FSC डिस्पेंसर, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, FSC लैब टेक्नीशियन, FSC रेडियोग्राफी इमेजिंग टेक्नीशियन करवा रहे हैं। और इसका मेन मकसद ये है कि वो बच्चे जो कि प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल से मैट्रिक के बाद आते हैं, उनको हम स्किल्स दें, उनको हुनर दें,
ताकि वो मुआशरे के मुफीद शहरी बन सके। जी हमारे साथ यहाँ पर प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मकसूद अहमद साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वो इस MIU के बारे में क्या कहना चाहते हैं। हमारा यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जंग के साथ एक वादा किया गया है जो बच्चों के मुस्तकबिल जो अभी एजुकेशन जब मुकम्मल करते हैं ख़ुसूसन मैट्रिक के बाद उनके पास आगे स्कोप नहीं होता कि वो क्या करें कि वालिदैन का सहारा बन सकें। और जंग जैसे एक इलाका जो हमारा रिमोट इलाका है तो यहाँ एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमने एक वादा किया है कि जो भी बच्चे यहाँ आएंगे उनको स्पेशल डील किया जाएगा, टेक्निकल एजुकेशन हासिल करें साइंस और हेल्थ के मतलब और अपने और वालिदैन के लिए कफील बने। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जंग में इस वक्त जो बच्चे मैट्रिक के बाद फ्री हैं उन बच्चों के लिए एक अच्छा रोजगार बनाने के लिए उनको अच्छे कोर्सेज करवाए जाएंगे। ठुल के इलाका RD 33 पर नहर में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ धान की फसल ज़ेर-ए-आब आ गई। नहर में शिगाफ पड़ने से काश्तकारों में तशवीश की लहर दौड़ गई, जबकि फसलों को मजीद नुकसान से बचाने के लिए भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। इलाका मकीनों और काश्तकारों ने महकमा आबपाशी के हुकाम से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर शिगाफ पुर करके पानी का बहाव रोका जाए ताकि मजीद ज़राई ज़मीनों और फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। नसीराबाद में यौम आज़ादी फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। फिरोज अली की निगरानी में मुनक्किदा टूर्नामेंट में मुख्तलिफ टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबले हुए। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल पेश किया और शायकीन फुटबॉल ने भरपूर जोशो खरोश का मुजाहिरा किया। बेहतरीन कारकर्दगी पर मुख्तलिफ शख्सियात को यादगारी शील्ड्स भी पेश की गईं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए TV टुडे।